Hello children, good morning. This is the third part of the chapter power sharing, and in this chapter, in this video, I am going to explain forms of power sharing. If you have not seen the previous videos, please watch them thoroughly. आप अच्छे से उनको समझिए, उनको देखिए और तभी आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ पाएगा। आपको सारे वीडियोस आपको वॉच करने हैं। The idea of power sharing has emerged in opposition to the notions of undivided political power. For a long time, it was believed that all power of a government must reside in one person or group of persons located at one place. Forms of power sharing means सत्ता की साझेदारी के रूप पावर शेयरिंग के क्या क्या फॉर्म्स हैं। तो ये जो आइडिया है पावर शेयरिंग का, राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता, इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया था। लंबे समय से यही मान्यता चली आ रही थी कि सरकार की सारी शक्तियां एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में रहनी चाहिए। It was felt that if the power to decide is dispersed, it would not be possible to take quick decisions and to enforce them. तो ये जो है, अगर फैसले लेने की शक्ति डिस्पर्स हो गई, बिखर गई, तो तुरंत फैसले लेना और उनको लागू करना पॉसिबल नहीं होगा। It was felt that if the power to decide is dispersed, it would not be possible to take quick decisions and to enforce them. But these notions have changed with the emergence of democracy. लेकिन ये जो notions हैं, ये जो मान्यताएं हैं, ये सब चेंज हुई कब? जैसे जैसे डेमोक्रेसी का इमर्जेंस हुआ, जैसे जैसे लोकतंत्र का उद्भव हुआ। One basic principle of democracy is that people are the source of all political power. तो एक जो बेसिक प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का, एक जो बुनियादी सिद्धांत है लोकतंत्र का, कि that people are the source of all political power, कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। In a democracy, people rule themselves through institutions of self-government. तो डेमोक्रेसी में, एक लोकतांत्रिक शासन में, एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में, इसमें लोग स्व शासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। One basic principle of democracy is that people are the source of all political power. All political power. In a democracy, people rule themselves through institutions of self-government. In a good democratic government, due respect is given to diverse groups and views that exist in a society. तो डेमोक्रेसी में, एक अच्छे जो लोकतांत्रिक शासन में, समाज के जो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, विभिन्न समूह, और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है और सार्वजनिक नीतियां तय करने में सबकी बातें शामिल होती हैं। Everyone has a voice in the shaping of public policies. Therefore,
it follows that in a democracy, political power should be distributed among as many citizens as possible. तो इसलिए उसी लोकतांत्रिक शासन को अच्छा माना जाता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को, ज़्यादा से ज़्यादा सिटीजन्स को राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदार बनाया जाए. The power should be distributed among as many citizens as possible. In modern democracies, power sharing arrangements can take many forms. आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स या सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं. Let's look at some of the most common arrangements that we have or will come across. तो आइए हम कुछ प्रचलित उदाहरणों पर या एग्जाम्पल्स पर गौर करते हैं. Power is shared among different organs of government, such as the legislature, executive, and judiciary. शासन के विभिन्न अंग, power is shared among different organs of government. Different organs of government means शासन के जो अलग अलग अंग हैं, विभिन्न अंग हैं, जैसे legislature, executive and judiciary. Legislature means विधायिका, executive means कार्यपालिका और judiciary means न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है. Power is shared among different organs of government such as the legislature, executive and judiciary. And let us call this horizontal distribution of power because it allows different organs of government placed at the same level to exercise different powers. तो इसे हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहेंगे, है ना. इसको हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. व्हाई? बिकॉज इसमें सरकार के विभिन्न अंग, different organs of government are placed at the same level to exercise different powers. सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं. Such a separation ensures that none of the organs can exercise unlimited power. तो ऐसे बंटवारे से ये सुनिश्चित हो जाता है, ये इंश्योर हो जाता है कि कोई भी एक ऑर्गन सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता. Such a separation ensures that none of the organs can exercise unlimited power. Each organ checks the others. हर एक ऑर्गन, हर एक अंग दूसरे पर अंकुश रखता है, उसको चेक करता है, निगरानी रखता है. Such a separation ensures that none of the organs can exercise unlimited power. Each organ checks the others, and this results in a balance of power among various institutions. तो इससे क्या होता है कि जो बैलेंस ऑफ पावर है, जो संतुलन है ना, सत्ता का संतुलन, वो क्या होता है? This results in a balance of power among various institutions. मतलब कि ये जो अलग अलग institutions हैं, है ना, उसमें पावर का बैलेंस बना रहता है ना, संतुलित रहता है, शक्तियों का संतुलन रहता है वेरियस इंस्टीट्यूशंस के बीच में. Last year
we studied that in a democracy, even though ministers and government officials exercise power, they are responsible to the parliament or state assemblies. तो लास्ट ईयर हमने पढ़ा था कि डेमोक्रेसी में जबकि मिनिस्टर्स और गवर्नमेंट जो भी मंत्री होते हैं, यहाँ की जो सरकार है, वो पावर सत्ता का उपभोग करती, पावर का को एक्सरसाइज करती है, अपनी शक्तियों का उपभोग करती है, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज. तो ये जो है ये क्या officials last parliament, they are responsible to the parliament और state assembly. वो पार्लियामेंट के प्रति और जो स्टेट असेंबलीज हैं, है ना, संसद या जो राज्यसभा है, उसके प्रति उत्तरदायी होती हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं. Similarly, although judges are appointed by the executive, they can check the functioning of executive or laws made by the legislatures. तो इस तरह से न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है ना. जजेस आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव. पर न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखती है ना. The judges are appointed by the executive. They can check the functioning of executive or laws made by the legislature, है ना. जबकि जजेस को अपॉइंट कौन करता है? एग्जीक्यूटिव्स करते हैं, कार्यपालिका अपॉइंट करती है. लेकिन वो कार्यपालिका के जो भी काम होते हैं, कार्यपालिका के जो भी कार्य होते हैं, उन पर अंकुश रखती है, या जो कार्यपालिका पर और विधायिका द्वारा जो भी कानून बनाए जाते हैं, जो लेजिस्लेचर्स जो भी लॉज फॉर्म करते हैं, बनाते हैं, उन पर अंकुश रखती है. इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं. दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड ए सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस. पावर कैन बी शेयर्ड एमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स. पावर जो है वो शेयर की जा सकती है विभिन्न स्तरों पर. सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा हो सकता है, जैसे ए जनरल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री एंड गवर्नमेंट्स एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल. पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार हो और फिर प्रांत या क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकार रहे, है ना. ए जनरल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री एंड गवर्नमेंट्स एट द provincial or regional level, and such a general government for the entire country is usually called federal government. तो इस तरह से पूरे देश के लिए बनने वाली एक ऐसी सामान्य सरकार को अक्सर, ये जो जनरल गवर्नमेंट है ना, सामान्य सरकार, इसको अक्सर संघ या केंद्र सरकार कहते हैं. Such a general government for the entire country is usually called federal government. In India, we refer to it as the central or union government. तो भारत में हम इसको क्या कहते हैं? सेंट्रल या केंद्रीय, या हम इसको संघीय सरकार कहा जाता है. The government at the provincial or regional level are called by different names in different countries. अब जो भी गवर्नमेंट्स हैं प्रोविंशियल या रीजनल लेवल पर, जो भी सरकारें हैं प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर पर, उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है अलग अलग देशों में. In India, we call them state governments. इंडिया में हम उनको क्या कहते हैं? इंडिया में हम उनको राज्य सरकार कहते हैं. हर देश
राज्य सरकार कहते हैं। एंड दिस सिस्टम इज़ नॉट फॉलोड इन ऑल कंट्रीज़। ये जो सिस्टम है वो सभी कंट्रीज़ में फॉलो नहीं होता है। देर आर मैनी कंट्रीज़ वेयर देर आर नो प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट्स। बहुत सी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर किसी भी तरह की ना तो प्रांतीय सरकार है ना राज्य सरकारें हैं। बट इन दोज कंट्रीज़ लाइक आवर्स where there are different levels of government, the constitution clearly lays down the powers of different levels of government. लेकिन हमारी तरह जिन देशों में ऐसी व्यवस्था है वहाँ के संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह से होगा। This is what they did in Belgium but was refused in Sri Lanka. बेल्जियम में तो यही काम हुआ है पर श्रीलंका में नहीं हुआ। This is called Federal Division of Power, है ना। इसी को हम क्या कहते हैं? फेडरल डिवीज़न ऑफ पावर। राज्य सरकारों से नीचे के स्तर की सरकारों के लिए भी ऐसी व्यवस्था हो सकती है और इसको हम फेडरल डिवीज़न ऑफ पावर कहते हैं। The same principle can be extended to levels of government lower than the state government such as the municipality and पंचायत। तो इसी तरह राज्य सरकारों से जो नीचे के लेवल पर जो सरकारें होती हैं उनके लिए भी ऐसी ही व्यवस्था हो सकती है। नगर पालिका और पंचायतें ऐसी ही इकाइयां हैं। नगर पालिका और पंचायतें जैसे म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत, ये सब इसी तरह की यूनिट्स हैं। एंड लेट अस कॉल डिवीजन ऑफ पावर्स इन्वॉल्विंग हायर एंड लोअर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के ऐसे बंटवारे को क्या कहते हैं? वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। हिंदी में इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर वितरण, है ना। वर्टिकल मतलब ऊपर से नीचे की तरफ। सबसे पहले एपेक्स पर जो सबसे हाई पोजीशन पर होता है, हम जैसे कहते हैं कि यूनियन गवर्नमेंट सबसे पहले, या सेंट्रल लेवल पर सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेवल पर, फिर लोकल लेवल की गवर्नमेंट, है ना। तो वी शैल स्टडी दीज एट सम लेंथ इन द नेक्स्ट चैप्टर। तो हम नेक्स्ट चैप्टर में इस अध्याय पर विस्तार से बात करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। नाउ पावर में ऑल्सो बी शेयर्ड एमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सच एज द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। सत्ता का बंटवारा या पावर शेयरिंग विभिन्न सामाजिक समूहों जैसे भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच भी हो सकता है। among different social groups such as the religious and linguistic groups, धार्मिक या भाषाई जो समूह होते हैं, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स होते हैं, उनमें भी पावर शेयरिंग हो सकती है। कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज़ ए गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस अरेंजमेंट। बेल्जियम में जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है, सामुदायिक सरकार, इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। is a good example of this arrangement. In some countries, there are constitutional and legal arrangements whereby socially weaker sections and women are represented in the legislatures and administrations. कुछ देशों के संविधान और कानून में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमज़ोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दे दी जाए। लास्ट ईयर we studied the system of reserved constituencies in assemblies and the parliament of our country. पिछले साल हमने अपने देश में प्रचलित आरक्षित चुनाव क्षेत्र वाली ऐसी ही व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। इस तरह की व्यवस्था जो है
है ना. And this type of arrangement is meant to give space in the government and administration to diverse social groups who otherwise would feel alienated from the government. तो इस तरह की व्यवस्था विधायिका और प्रशासन में अलग अलग सामूहिक समूहों को, जो सोशल ग्रुप्स हैं, उनको हिस्सेदारी देने के लिए की जाती है, ताकि लोग खुद को शासन से अलग ना समझने लगें, ताकि वो अपने आप को गवर्नमेंट से एलियनेटेड ना फील करने लगें. एंड दिस मेथड इज़ यूज्ड टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ ए फेयर शेयर इन पावर. तो इस तरह की व्यवस्था जो है अल्पसंख्यक समुदायों को भी इसी तरीके से सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी जाती है. इन यूनिट 2 वी शैल लुक एट वेरियस वेज ऑफ एकोमोडेटिंग सोशल डाइवर्सिटीज़. तो यूनिट 2 में हम लोग जो है देखेंगे तरह तरह के जो तरीके होते हैं सोशल डाइवर्सिटीज़ को एकोमोडेट करने वाले, है ना, कि जो सामाजिक विविधताओं को जो सोशल डाइवर्सिटीज़ हैं उनको शासन में, गवर्नमेंट में किस तरह से भागीदारी देने के लिए अलग अलग तरीक़ों पर हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट यूनिट 2. नाउ power sharing arrangements can also be seen in the way political parties, pressure groups and movements control or influence those in power. This is the fourth form of power sharing. Power sharing arrangements can also be seen in the way political parties. सत्ता के बंटवारे का एक रूप हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूह, जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, है ना, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, राजनीतिक दल हैं, और इसके साथ साथ जो आंदोलन है ना, मूवमेंट्स होते हैं, ये शासन को प्रभावित करते हैं और उनको नियंत्रित करने के मतलब उन पर इन्फ्लुएंस करते हैं. जो पावर में होते हैं उन पर अपना दबाव बनाते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए. तो इन ए डेमोक्रेसी द सिटीजन्स मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज एमंग वेरियस कंटेंडर्स फॉर पावर. लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता के दावेदारों के बीच चुनाव का विकल्प ज़रूर रहना चाहिए. एक डेमोक्रेसी में जो सिटीजन्स हैं उनको ये फ्रीडम होनी चाहिए, ताकि वो जो बहुत सारे वेरियस कंटेंडर्स हैं पावर के लिए, जो आगे आते हैं, है ना, सत्ता के लिए दावा करते हैं पावर के लिए, उनके बीच में चुनाव का विकल्प हो. दे कैन चूज़, है ना, among various contenders for power. In contemporary democracies, this takes the form of competition among different parties. समकालीन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में, कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसीज में, ये विकल्प विभिन्न पार्टियों के रूप में उपलब्ध होता है कि ये जो फॉर्म ऑफ कंपटीशन है ना, ये देखा जाता है डिफरेंट पार्टीज़ के बीच में. सच कंपटीशन इंश्योर्स दैट पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड. तो इस तरह से ये जो कंपटीशन है, ये जो प्रतिस्पर्धा का रूप है डिफरेंट पार्टीज़ के बीच में, है ना, तो ये कंपटीशन ये इंश्योर करता है, ये सुनिश्चित करता है कि जो पावर है, जो सत्ता है, वो किसी एक के हाथ में नहीं रह सकती. In the long run, power is shared among different political parties that represent different ideologies and social groups. तो आगे चल करके ये पार्टियां जो सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करती हैं, ये जो पार्टीज़ हैं वो क्या करती हैं, कंपटीशन करती हैं, और इस तरह से
ये इनकी जो आपसी जो इनका कंपटीशन होता है, इस बात को इंश्योर करता है कि पावर जो है वो किसी भी एक इंडिविजुअल के पास या किसी ग्रुप के हाथ में नहीं रहती। तो एक काफ़ी लॉन्ग रन में, है ना, अगर हम देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि पावर जो है वो बारी बारी से अलग अलग विचारधारा और सामाजिक समूहों वाली पार्टियों के हाथ में आती रहती है, जिनकी डिफरेंट आइडियोलॉजीज होती हैं, है ना, और जो सोशल ग्रुप्स होते हैं उनके पास। तो समटाइम्स दिस काइंड ऑफ शेयरिंग कैन बी डायरेक्ट व्हेन 2 or more parties form an alliance to contest elections। कई बार ये जो सत्ता की भागीदारी है, ये पावर शेयरिंग है, एकदम डायरेक्टली हमको दिखती है, क्योंकि 2 या अधिक पार्टियां मिल करके चुनाव लड़ती हैं, अलायंस फॉर्म करती हैं या सरकार का गठन करती हैं। इफ देयर अलायंस इज इलेक्टेड दे फॉर्म ए कोएलिशन गवर्नमेंट एंड दस शेयर पावर। अगर उनका अलायंस, उनका जो संगठन है ना, उसको चुन लिया जाता है, तो वो एक कोएलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं, एक संगठित सरकार बनाती हैं। We in a democracy we find interest groups such as those of traders, businessmen, industrialists, farmers and industrial workers। तो लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठित हित समूहों या इंटरेस्ट ग्रुप्स जो होते हैं उनको भी देखते हैं कि वो भी एक्टिव रहते हैं इसमें। They also will have a share in governmental power, either through participation in governmental committees or bringing influence on the decision making process। तो लोकतंत्र में हम देखते हैं कि ये सारे जो इतने सारे ग्रुप्स हैं ये सब एक्टिव होते हैं। सरकार की जो बहुत सारी समितियां होती हैं उसमें सीधी भागीदारी करके, पार्टिसिपेशन करके, या कि इन पॉलिसीज़ पर या इन नीतियों पर अपने जो इनके सदस्य वर्ग होते हैं इनके लाभ के लिए, इनके इंटरेस्ट के लिए दबाव बना करके, प्रेशर बना करके ये समूह भी सत्ता में भागीदारी करते हैं। ये जो ग्रुप्स हैं ये दीज ग्रुप्स आल्सो पार्टिसिपेट इन पावर, है ना, दे आल्सो पार्टिसिपेट and bring influence on the decision making process। In Unit 3, we shall study the working of political parties, pressure groups and social movements। तो Unit 3 में हम जो है पढ़ेंगे जो भी राजनीतिक दल, दबाव, समूह और सामाजिक आंदोलनों की कार्यप्रणाली पर गौर करेंगे। ओके, नाउ let's revise। Here are some examples of power sharing। Which of the 4 types of power sharing do these represent? Who is sharing power with whom? यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, कुछ उदाहरण दिए हैं पावर शेयरिंग के, सत्ता के बंटवारे के, जिनमें से विच ऑफ द 4 टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग डू दीज रिप्रेजेंट। अब आपने 4 तरह की पावर शेयरिंग पढ़ी है, सत्ता की साझेदारी के 4 रूप आपने पढ़े, ठीक है, सत्ता के बंटवारे के। तो ये जो सत्ता की साझेदारी की 4 श्रेणियां हैं ये किस में आती हैं? यहाँ सत्ता का साझा कौन किसके साथ कर रहा है? पावर शेयरिंग कौन किसके साथ कर रहा है? हु इज शेयरिंग पावर विद हु? फर्स्ट, द बॉम्बे हाई कोर्ट ऑर्डर्ड द महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट to immediately take action and improve living conditions for the 2000 odd children at 7 children's home in Mumbai। मुंबई में
उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को आदेश दिया कि वो तत्काल कार्रवाई करे और मुंबई के 7 अनाथालयों के 2000 बच्चों के रख रखाव में सुधार करे, है ना। तो यहाँ पर आपको देखना है कि जो 4 टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग है वो क्या यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, द गवर्नमेंट ऑफ ऑन्टेरियो स्टेट इन कैनेडा has agreed to a land claim settlement with the Aboriginal community. The minister responsible for native affairs announced that the government will work with Aboriginal people in a spirit of mutual respect and cooperation. कनाडा के ओंटेरियो प्रांत की सरकार ने वहाँ के मूलवासी समुदाय के साथ ज़मीन के दावों का निपटारा करने पर सहमति दे दी। स्थानीय मामलों के लिए जवाबदेह मंत्री ने घोषणा की कि सरकार मूलवासी समुदाय के लिए एबओरिजिनल या मूलवासी जो वहाँ पर समुदाय हैं उनके साथ पारस्परिक सम्मान और सहयोग की भावना से काम करेगी। एंड नेक्स्ट पॉइंट, Russia's 2 influential political parties, the Union of Right Forces and the Liberal Yabloko movement, agreed to unite their organizations into a strong right-wing coalition, and they oppose to have a common list of candidates in the next parliamentary elections. तो यहाँ पर रूस की 2 प्रभावशाली राजनीतिक पार्टियाँ हैं, द यूनियन ऑन राइट फोर्सेस और यूनियन ऑफ राइट फोर्सेस और दूसरा है लिबरल याब्लोको मूवमेंट। तो इन्होंने एक मजबूत और दक्षिणपंथी गठबंधन बनाने के लिए अपने संगठनों के विलय का फैसला लिया कि वो जो है उन्होंने एग्री किया कि जो उनके ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको एक स्ट्रॉन्ग राइट विंग कोalition में उनको यूनाइट करेंगी अपनी ऑर्गेनाइजेशन को। तो ये जो प्रस्ताव है इनका कि अगले संसदीय चुनाव में हम उम्मीदवारों की साझा सूची बनाएंगे, है ना। They propose to have a common list of candidates in the next parliamentary elections. The next point, the finance ministers of various states in Nigeria got together and demanded that the federal government declare its sources of income. They also wanted to know the formula by which the revenue is distributed to various state governments. तो यहाँ पर नाइजीरिया के जो अलग अलग प्रांत हैं, विभिन्न प्रांतों के वित्त मंत्रियों ने एकजुट होकर के मांग की कि संघीय सरकार अपनी आमदनी के स्रोतों को घोषित करे कि जो भी उसके इनकम सोर्सेज हैं उनको डिक्लेयर करे वहाँ की फेडरल गवर्नमेंट। वो ये भी जानना चाहते थे कि विभिन्न प्रांतों के बीच राजस्व का बंटवारा किस आधार पर होता है ना, कि विच the revenue is distributed to various state governments. They also wanted to know the formula by which the revenue is distributed to various state governments. तो इसमें अब आपको क्या करना है कि जो भी आपने forms of power sharings पढ़ी हैं, है ना, the first form of power sharing that is also known as horizontal distribution of powers, है ना, that is also known as the system of checks and balances. Power sharing among the different organs of government. And the second form of power sharing is power sharing between the different among the different levels of government, like union government or central government, and after that उसके नीचे जो state level government है, फिर उसके नीचे local level of government है, इनमें किस तरह से, and that is also called the vertical division of power. वर्टिकल पावर शेयरिंग भी हम उसको कहते हैं। इसके अलावा जो थर्ड टाइप की पावर शेयरिंग आपने पढ़ी है ना, किस तरह से सोशल रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के बीच में पावर शेयरिंग होती है। और फोर्थ टाइप ऑफ पावर शेयरिंग जो आपने पढ़ा कि बहुत सारे जो सोशल ग्रुप्स हैं, मूवमेंट्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, किस तरह से उनके बीच में पावर शेयरिंग होती है। तो यहाँ पर
किस तरह की पावर शेयरिंग, ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं पावर शेयरिंग के वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ पर पावर शेयरिंग कौन कर रहा है, किसके साथ कर रहा है। आप ये सारे क्वेश्चंस को, इनको अच्छी तरह से इन एग्जाम्पल्स को पढ़िए समझ करके, और इनके आंसर्स आप नोट डाउन करिए, कॉपी में लिख करके सबमिट करिए आप अपने आंसर्स। ओके, नाउ दिस चैप्टर हैज़ बीन फिनिश्ड। ओके, थैंक यू।